Hello and welcome to Read Steve channel. I am Asmita. Today, Manthan State Level General Knowledge Exam 2025, Paper 1 Standard 5th, Subject English Language and Mathematics. Part 1 English Language. Instruction for question number 1 to 3. Read the following passage carefully and answer the given questions. Be like a flower. One must try to become like a flower, open, frank, equal, generous, and kind. A flower is open to all that surrounds it: nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. It exerts a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty and lets fragrance flow frankly out of itself. What is within and what is in its depth. It lets it come out so everyone can see it. It is equal. It has no preferences without rivalry. It sacrifices itself entirely for our pleasure, even its life. Then kind. It has such a tenderness. It is so sweet, so close to us, so loving. Its presence fills us with joy. It is always cheerful and happy. Happy is who can exchange his qualities with the real qualities of the flowers. Try to cultivate in yourself and refined qualities. Question number 1. Choose the synonym of the word scent from the above passage. तो उसका fragrance है option 3. Question 2. Why are flowers open to all? It influences all, it radiates joy, it spreads its beauty to all. 4 all are correct. So option 4 is correct. Question 3. What are the refined qualities of a flower? Fragrance and beauty. Option 3 correct है. Question 4. Filling the blank with suitable article and choose correct option. Dash honest person will choose the path of truth. यहाँ पर इवन दो H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका साउंड जो है वो ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पर एन यूज होगा. क्वेश्चन 5. फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन. माई नंबर इज 12 इन द मस्टर, सो आई एम 12 इन द क्लास. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है, 12th. क्वेश्चन 6. Find the collective noun from the given sentence. My father bought a bouquet of lilies for my mother. तो यहाँ पर collective noun जो है वो है bouquet. Bouquet मतलब group of flowers. Option 4 is correct. Question 7. यहाँ पर एक greet दिया है. Complete the given puzzle by choosing correct option at the place of question mark. यहाँ पर देखिए PLEASURE प्लेजर होता है, जैसे LAUGH लाफ, DREAM ड्रीम और ब्यूटी, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है. इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 10. Read the following news and answer the given questions. Paris 2024 Olympics medal tally. Indian winner from every sport. 11 August 2024. A total of 117 Indian athletes made up the contingent that went on the hunt for medals and sporting immortality at the Paris 2024 Olympics, which ran from July 26 to August 11th. In all, India won 6 medals, a silver and 5 bronze at the Paris 2024 Olympics. Manu Bhaker won the first medal for India. She bagged a bronze and became the first Indian woman to win an Olympic shooting medal. Swapnil Kusle added a third medal in shooting to make it India's biggest haul in a sport in single edition of Olympics. The Indian men's hockey team matched their Tokyo 2020 success with the bronze in Paris, while Neeraj Chopra became the most successful individual Olympian after he claimed a silver medal
in the javelin throw. Later, Aman Sherawat became India's youngest Olympic medalist when he won bronze in wrestling. Vinesh Phogat's disqualification ahead of a heroic find also added to India's woes. Harmanpreet Singh led Indian men's hockey team were the other returning Olympic medalist in the India contingent to Paris 2024. Question 8. How long did the Olympic Games last? तो यहाँ पर हमें 26 जुलाई से 11 अगस्त ये डेट्स दी है, इसलिए आप ऑप्शन 4 करेक्ट है, 17 डेज. क्वेश्चन 9. फाइंड आउट रॉन्ग पेयर ऑफ ओलंपिक प्लेयर एंड देयर गेम्स. सो यहाँ पर सिर्फ बी जो है स्वप्निल कुसले रेसलिंग यहाँ पर दिया है, लेकिन वो शूटिंग का था. सो ये ऑप्शन 1 इज आंसर. क्वेश्चन 10. इन विच गेम इंडियन ओलंपियन डिड विन सिल्वर मेडल. सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में मिला है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है. क्वेश्चन 11. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ एनिमल एंड इट्स यंग वन. डियर, फॉन, हॉर्स, काफ, एस, ग्रग, डॉग, पपी. तो सिर्फ ए और डी करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज आंसर. क्वेश्चन 12. फाइंड द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड आंसर. द ओनर ऑफ द होटल डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फीस्ट. हु नहीं आएगा. व्हाट डिड द ओनर ऑफ द होटल डिसाइड टू होल्ड. ऑप्शन 2 is correct. Question 13. Fill in the blank by choosing correct option. The submarine is capable of working under dash also. Submarine under water काम करती है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. Question 14. Select the correct preposition and fill in the blank. The soldier did their best dash the nation. तो for the nation होता है, ऑप्शन 2 is correct. Question 15. Choose the imperative sentence from the following options. Please give me a glass of water. How kind you are. Please close the door. Why are you going there? ये 4 सेंटेंस दिए हैं. सो इनमें से ऑप्शन A, B, A एंड C ये 2 imperative sentences है. ये एक्सक्लेमेटरी है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है. क्वेश्चन 16. हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ओ, इट्स ओल्ड, इट हैज बिकम ब्लंट. तो यहाँ पर आप देखिए तो 2 यहाँ पर एडजेक्टिव्स है. क्वेश्चन 17. फाइंड द रॉन्ग पेयर ऑफ फ्रेज एंड इट्स मीनिंग. इन फुल स्विंग, वेरी एक्टिव. द इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स. To give away, to break down. To make room, to build a room. तो यहाँ पर 4th wrong है. Question 18. Find the wrong pair of contracted forms. Will, not, won't, I have. ये wrong है. So option 2 is answer. Question 19. Choose the correct slogan for the given picture. यहाँ पर एक आदमी झाड़ को पानी दे रहा है. सो प्लांट ट्री, सेव एनवायरमेंट, ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वेस्ट. डोंट वरी, बी हैप्पी. शैल आई हेल्प यू विद दैट. देखिए ऑप्शन 2 ये रिक्वेस्ट है. क्वेश्चन 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज नॉट रिलेटेड विथ नेचर. सेव अर्थ, सेव लाइफ. थिंक ग्रीन, लिव क्लीन. Reduce, reuse, recycle. We need peace for better life. Option 4 is correct. Question 22. Pick out the wrong pair from the following. First है AM, anti-meridium. ETC, electronic. Option 2 is correct है. ETC मतलब etc. होता है. Question 23. Choose the correct option to fill in the blank. They have a swimming pool at dash house. ये होता है at their house. Option 3 is correct. Instructions for question number 24 and 25. Read the leaflet and choose the correct option. यहाँ पर leaflet में दिया है इलेक्ट्रिक कार्स बेनिफिट्स दिए हैं यहाँ पर. Question 24. What is the leaflet about?
benefits of electric car. So option 4 is correct. Question 25. Which one is not the benefit of electric car? तो less emission, vehicle safety, save on petrol, environment benefit. तो यहाँ पर option 2 correct है. Part 2 mathematics. Question 26. Solve the given mathematical expression considering Roman numbers. यहाँ पर Roman numbers दिए हैं. वैल्यूज पुटअप करने पर हमें मिला 105 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 20. यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया 105 माइनस 75 प्लस 20. नेक्स्ट हम 105 माइनस 75 करेंगे तो होता है 30 प्लस 20, मतलब आंसर आया 50. 50 को रोमन में L लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Question 28. If 750 ml oil is used in kitchen daily, then how much oil will be used in November month? 750 ml रोज यूज होता है तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, इसलिए हो गया 22,500 डिवाइड बाय 1000, सो ये हो गया 22.5 लीटर. Question 29. If Maharashtra Day was on Wednesday in 2018, then on which day will Maharashtra Day be in the year 2020? 1 मई 2018 वेनसडे को था. अब 2018 जो है ये रेगुलर ईयर है, इसलिए 1 मई 2019 में 1 ऐड हो जाएगा. 1 मई 2020 के लिए 2 ऐड होंगे क्योंकि 2020 ये लीप ईयर है. टोटल 3 डेज ऐड होंगे. वेनसडे प्लस 3 डेज हम ऐड करेंगे तो हो गया सैटरडे, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है. क्वेश्चन 30. विच टाइप ऑफ एंगल इज बिटवीन द टाइल्स ऑफ अ फ्लोर एंड एडजेसेंट वॉल ऑफ अ बिल्डिंग विच इज परपेंडिकुलर टू इट? तो जो परपेंडिकुलर होता है उसमें राइट एंगल होता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 31. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर अकर सीरियली बिफोर अ नंबर 10 करोड़ 10,000 69? यहाँ पर बिफोर बोला है, 69 से बिफोर आता है 68, इसलिए 10 करोड़ 10,000 68 हमने ढूंढना है, जो ऑप्शन 3 में दिया है. क्वेश्चन 32. डैश 0432 माइनस डैश 851 is equal to 80581. Then which of the following digit will replace the question mark? तो यहाँ पर हमें सारे नंबर्स ट्राई करने होंगे. ऑप्शन 3 पुटअप करने पर हमें करेक्ट आंसर मिलता है, इसलिए ऑप्शन 3 7 करेक्ट है. क्वेश्चन 33. When a number is multiplied by 8 instead of 12, the multiplication decreases by 40. Then which is that number? हम अज्यूम करते हैं वो नंबर x है. तो इनका कहना यह है कि अगर हमने एक नंबर है x जिसको 8 से मल्टीप्लाई किया जबकि हमें 12 से करना था, मतलब 12x का 8x हमने किया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 40 से डिक्रीज होता है. डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट, तो ये -40, तो हो गया 4x इक्वल्स टू 40, मतलब x की वैल्यू है 10. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 34. If 60 kg rice is to be distributed equally among 25 students, then how much rice will each student get? अब यहाँ पर 60 kg राइस है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. 25 2 सा 50, 10 बचते हैं, पॉइंट लेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 सा 100, आंसर है 2.4. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टाइसेस. ये करेक्ट है. ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल्स. ये भी करेक्ट है. द लेंथ ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज डिफरेंट. ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर है. क्वेश्चन 36.
The length of largest chord of a circle is 8.5 centimeter. Then what will be the distance between the center of a circle and any point on that circle? सबसे पहले ये समझ लीजिए, लार्जेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो होता है डायमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल और एनी पॉइंट मतलब ये रेडियस की बात कर रहे हैं. रेडियस डायमीटर के आधी होती है, इसलिए 8.5 का हाफ अगर लेंगे तो 4.25 मिलेगा. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 37. द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. 50 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मतलब ये हो गया 5 लाख. सो ऑप्शन 2 में 5 लाख ये वैल्यू है. Question 38. If an item is sold for ₹60, there is a profit of 1/5 of cost price. Then what is the cost price of that item? Selling price 60 है, cost price हमें ढूंढनी है, profit 1/5 of cost price है. Profit कैलकुलेट होता है SP माइनस CP, लेकिन यहाँ पर profit तो CP अपॉन 5, 1/5 of CP है, इज इक्वल टू 60 माइनस CP. अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करके 60 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ CP प्लस CP. एलसीएम लेकर हमने जब इक्विवेलेंट किया तो ये आ गया 300 इज इक्वल टू 6 CP, और ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको CP मिल जाएगा 50. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 39. Choose the correct symbols which can replace the following boxes respectively. तो 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, 8/15, 15/8 और 8/12. सबसे पहले 15, 8 और 12 का LCM निकालेंगे. LCM 120 आ जाता है. अब हम तीनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर जो है वो LCM के बराबर है. तो ये आता है 64/120, 225/120 और 80/120. इसमें से देखिए 64 225 से छोटा है इसलिए लेस देन साइन आएगी, और 225 80 से बड़ा है इसलिए ग्रेटर देन साइन आएगी. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 40 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू हाउ मच लीटर. सो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Question 41. The answer of which of the following mathematical operation will be an even number definitely? A. Multiplication of two even numbers. So ये even number आता है. Subtraction of two odd numbers. Subtraction of two odd numbers हमेशा even आता है. Multiplication of one even and one odd number. So multiplication भी किया तो भी even आता है. जैसे 6 3s are 18, 2 3s are 6 आता है ऐसे. लेकिन सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ये ऑड होता है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं आता है. ओनली ए, बी एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन 42. हाउ मच विल बी अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट रेट ऑफ 6 PCPA आफ्टर 30 मंथ्स. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100. सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे. अब 30 मंथ्स बोला है, जबकि टाइम हमें इन टर्म्स ऑफ ईयर चाहिए होता है, इसलिए हम 30 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे. सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 15 जा 30, इसलिए यहाँ पर अब न्यूमरेटर में 15 आ गया है. ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 15 हम करेंगे. सो ये आ गया 2250. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 43. Which of the following numbers should be subtracted from 124, 169 and 109 so that all numbers got will be completely divisible by 15? ये निकालने के लिए हमें सारे नंबर्स को 15 से डिवाइड करना है, तो आपको पता चलेगा कि 4 ये ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन 2 4 इज आंसर. क्वेश्चन 44. The height of one box is 45 centimeter. Then how much millimeter will be the height of 35 such boxes which are kept on each other?
मतलब एक बॉक्स जो है उसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अगर हमने 35 बॉक्सेस लिए तो उसकी हाइट मिलीमीटर में कितनी होगी? तो सबसे पहले तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 35 कर लेंगे। ये आ गया 1575। 1575 सेंटीमीटर मतलब 15750 millimeter. So option 1 is correct. Question 45. Solve 5 upon 2 plus 7 upon 2 into 1 upon 3 minus 2 is equal to 5 upon 2 plus 7 upon 2 ये 12 upon 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 6 जा 12। अब 6 upon 3 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया, मतलब बचा 2। So 2 minus 2 is 0. Option 2 is correct. Question 46. The total cost of 2 pens and 8 pencils is rupees 60. If the price of pen is more by 15 rupees, then price of pencil, then what is the cost of 2 pens? हम कंसिडर करते हैं कि P ये पेन की कीमत है और N ये पेंसिल की कीमत है। सो 2 पेन्स प्लस 8 पेंसिल्स की टोटल होती है 60 रुपीज। लेकिन यहाँ पर दिया है प्राइस ऑफ पेन इज मोर बाय 15 रुपीज, तो प्राइस ऑफ पेन जो है तो पेंसिल से 15 रुपए ज्यादा है, मतलब n प्लस 15 हो गया। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब हमें ये ढूंढना है कि कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स क्या है। अगर n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है पेन की वैल्यू n प्लस 15 है, मतलब 18, और 18 टू जा होता है 36, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 47. हेल्थ कैंप स्टार्टेड एट 8:30 in the morning and ended at 4:45 in the evening. Then how much was the duration of that health camp? 8:30 को स्टार्ट हुआ और ended at 4:45 मतलब 4:45 PM को एंड हुआ। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम 4:45 PM को 24 आवर क्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया 16:45। 16:45 माइनस 8:30 तो 15 मिनट्स और 8, इसका मतलब है 8 hours 15 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question 48. How many minimum beads should be used to make a necklace of 18 and 24 beads each, so that not even a single bead will remain after making the necklace? मतलब ऐसे कम से कम कितने हमें मोती चाहिए जिससे 18 और 24 मोती का हार बनेगा और एक भी बीड बाकी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम LCM निकालेंगे। LCM of 18 and 24 is 72. So option 1 is correct. Question 49. 1/5 of 50 plus half of 20 is equal to 1/10 of dash. Which of the following number can be placed in the box? 1/5 of 50 plus half of 20, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, वैसे ही 2 10 जा 20। So यहाँ पर आता है 20। 20 is 1/10 of 200, इसलिए ऑप्शन 1 is correct. Question 50. In a Saraswati school, there are 20 rows of 63 students each for a prayer. If rows of 45 students in each row are formed, then by how much will a number of rows increases? तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं। 20 रोज अगर आपने बनाई है 63 स्टूडेंट की, तो टोटल 1260 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें 45 की अगर रो बनानी है तो कितनी रोज लगेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम है, तो ये डिवाइड करने पर हमें 28 मिलता है। दोनों का डिफरेंस होता है 8 रोज, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 51.
विच डेसिमल फ्रैक्शन इंडिकेट्स द शेडेड पार्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर टोटल 20 बॉक्सेस है, उसमें से 4 शेडेड है, मतलब 4/20। लेकिन यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन पूछा है, इसलिए ऑप्शन 4.2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, देयर आर 1050 पैसेंजर्स सिटिंग मुंबई इन शताब्दी एक्सप्रेस which is going to Delhi from Mumbai. At Bhopal station, 650 passengers alighted from the train and 260 passengers boarded in train. Alighted मतलब उतरे और boarded मतलब चढ़े। So 1050 में से 650 माइनस कर लेंगे तो बचा 400। 400 में 260 चढ़ गए, मतलब 660 अब पैसेंजर्स हैं। तो टोटल अभी 660 है। एट जयपुर स्टेशन विच इज बिफोर दिल्ली 300 पैसेंजर्स बोर्डेड इन द ट्रेन। तो 300 लोग चढ़े, हो गया 960। एंड सम पैसेंजर्स अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। अब कितने पैसेंजर्स उतरे हमें नहीं दिया है। इफ लास्ट देयर वॉज 750 पैसेंजर्स रिमेन्ड एट दिल्ली स्टेशन टू अलाइन फ्रॉम द ट्रेन, then how many passengers were alighted from train at Jaipur station। मतलब दिल्ली में जब आए तो 750 ही पैसेंजर्स थे, तो हम 960 माइनस 750 कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 210 पैसेंजर्स उतरे थे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, which of the following fraction is not an equivalent fraction of 34/7। ऑप्शंस ऑब्जर्व करिए। डिनोमिनेटर 7 है, मतलब वो 7 का इक्विवेलेंट होता है, जैसे 7, 70, 14। लेकिन वो 6 कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, दुर्वेश विल गो टू मुंबई आफ्टर 8 days ऑफ डेट 12, देन ऑन विच डेट विल ही गो। मतलब दुर्वेश जो है 8 दिन के बाद, मतलब 12 तारीख से 8 दिन के बाद वो जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 12 से ही 8 डेज काउंट करेंगे। सो ऑप्शन आएगा 3, 21। क्वेश्चन 55, बाय हाउ मच विल अ क्वोशंट डिक्रीज इफ अ डिवाइजर इन 4242 डिवाइड बाय 6 इज इंक्रीज्ड बाय 1। ये चेक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअल डिवीजन में क्वोशंट क्या आता है। ओरिजिनल डिवाइजर 6 है तो उसका 707 आता है, लेकिन अगर वो 1 से बढ़ गया तो फिर 100 ये जो है 606 आएगा क्वोशंट। तो 101 से रिड्यूस हुआ है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, a shopkeeper had 80 kg wheat. From this he sold 2 bags of wheat, each of weight 20.25 kg. Then how much wheat remained at shopkeeper? 80 किलो में से 2 बैग्स 20.25 kg के उसने बेचे हैं, मतलब 40.50 kg। तो उसके पास 39.5 kg बचता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, if two equilateral triangles each of 8 cm side are joined together from the base of triangle, then what will be the perimeter of the new figure। इसका मतलब है 2 ट्राइंगल्स हमने बेस जहां पर है वहां से ज्वाइन किया है। तो अब ये वाली जो 2 लाइन से हम कंसिडर नहीं करेंगे। पेरीमीटर सिर्फ आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 8 4 द 32। ऑप्शन 4 is correct. Question 58. 8 plus dash upon 5 is equal to 10 2/5. Which number should be placed in the dash so that equation will be true? अब यहाँ पर 10 2/5 दिया है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 52/5। अब वैसे ही अगर आप देखेंगे 8 प्लस डैश अपॉन 2 अगर आपको करना है, एलसीएम लेने पर यहाँ पर 8 5 40 हो जाएगा। 40 प्लस 12 करेंगे तो मुझे 52 मिलता है। इसका मतलब ब्लैंक में 12 होना चाहिए। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
Question 59. How many times a digit 0 should be used to form a smallest digit 8-digit number by using the digits 2075? यहाँ हमें स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर क्रिएट करना है. सो 2057 तो हमने ये डिजिट्स यूज कर लिए. अब 1 2 3 4 टाइम्स और 0 ऐड किया. सो टोटल हमने 5 टाइम्स 0 यूज किया है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस रिस्पेक्टिवली इन द गिवन इक्वेशन? तो यहाँ पर हमें सारे एक बार ट्राई करने होंगे. ट्राई करने के बाद बी और सी करेक्ट आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 61. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल अकर एट द प्लेस ऑफ स्टार एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर 68360 स्टार 68036 स्क्वायर एंड 67998 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर? अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए ये देखना है कि स्टार के जगह पर एक ऐसा नंबर हो जो 68360 से छोटा लेकिन 68036 से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में है. यह है 68300 और स्क्वायर में जो नंबर है वो 68036 से छोटा और 67998 से बड़ा होना चाहिए, जो है 68001. इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है. Instruction for question number 62 and 63. The information of various professionals is shown in the pictorial form. Answer the given questions based on it. Name of professionals दिए हैं, number of professionals और scale है एक picture मतलब 25 professionals. Question 62. Information of how many number of professionals is given in the above pictorial information. तो यहाँ पर हमें टोटल काउंट करने होंगे. टोटल का मतलब ऐसा है कि ये सारे काउंट करेंगे, जो है टोटल 26 मल्टीप्लाइड बाय 25 मतलब 650. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 63. द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इज लेस बाय 50 देन नंबर ऑफ विच प्रोफेशनल्स? अब डॉक्टर और इंजीनियर ये टोटल मिलकर होते हैं 7. 1 2 3 4 5 6 7. वो किससे 50 से कम है, मतलब उससे ज्यादा 2 और होने चाहिए. तो यहाँ पर देखिए फार्मर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 2 से ज्यादा है, इसलिए फार्मर ये आंसर करेक्ट है. क्वेश्चन 64. इफ 10 क्वायर्स पेपर आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग फ्रॉम 2 ग्रॉस पेपर्स देन हाउ मच पेपर्स आर रिमेन्ड? 1 क्वायर मतलब 24 शीट्स होती हैं और 1 ग्रॉस मतलब 144. 10 क्वायर्स मतलब 240 हो गई, 2 ग्रॉस मतलब 288. डिफरेंस इनका 48 है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन 65. द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर? यहाँ पर देखिए टोटल 40 बाय 30 का दिया है और ये शेडेड है, हमें अनशेडेड का फाइंड आउट करना है. यहाँ हम एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ टोटल पार्ट माइनस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हम कर सकते हैं. सो टोटल होगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 मतलब ये हो गया 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर. और अगर आप शेडेड देखें तो ये एक हाफ है, ये हाफ मिलकर ये 2 हो गए और ये दोनों मिलकर ये थर्ड हो गया, मतलब ये है 40 मल्टीप्लाइड बाय ये 30 के बदले अभी 10 ही है, इसलिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 66. If a cube is formed from the net structure shown in the adjoining figure, then which number will not be adjacent to a number 4 definitely? हमें पता है कि क्यूब में ये अल्टरनेट जो होते हैं वो
ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे 1 का ऑपोजिट 3 है, 2 का ऑपोजिट 4 है और 5 का ऑपोजिट 6 है। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि 4 का एडजेसेंट जो डेफिनेटली नहीं होगा वो होगा उसका ऑपोजिट, क्योंकि बाकी के उसके आसपास आने वाले हैं। तो इसलिए 2 ऑप्शन 1 ये नंबर है जो 4 के एडजेसेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन 67, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट इन मल्टीपल ऑफ 5? 5 के मल्टीपल कैसे होते हैं? जैसे 5 है, 10 है, फिर 15, 20, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में 2 है, 11 to 20 के बीच में फिर से 2 है। ऐसे आप देखेंगे तो टोटल 20 हो जाएंगे। 1 से 100 में 100 नंबर्स होते हैं, माइनस ये मल्टीपल्स ऑफ 20 हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 80। इसलिए ऑप्शन 2 80 इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, 22 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट गिव्स अस 4444? ये फाइंड आउट करने के लिए 4444 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिल गया 202। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 69, हाउ मेनी रुपीज 50 नोट्स विल गेट बाय गिविंग 100 कॉइन्स ऑफ रुपीज 10? 100 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज है, मतलब टोटल 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज को जब हमने 50 से डिवाइड किया तो हमें आंसर 20 मिलता है। इसके ये है कि 20 नोट्स ऑफ 50 विल बी गिवन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 70, Raj bought 20 dozen mangoes at the rate of rupees 90 per dozen. From those mangoes, 1.5 dozen mangoes were wasted. Raj sold remaining mangoes at the rate of rupees 12 per mango. Then, did he make profit or loss in this transaction and how much? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने टोटल कितने मैंगोज खरीदे हैं और एक मैंगो के लिए उसको कितने पैसे देने पड़े। सो कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। जैसे 1 डजन मतलब 12 मैंगोज होते हैं, लेकिन उसने 20 डजन लिए हैं, इसलिए ये टोटल हो गए 240 मैंगोज। उसने 90 रुपीज पर डजन के हिसाब से लिए हैं, 90 रुपीज के 12 मैंगोज लिए हैं, मतलब 7 रुपीज 50 पैसे का एक मैंगो हुआ। तो ये तो रेट निकल गया 1 मैंगो का, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि उसके 1.5 डजन मैंगोज जो है वो खराब हो गए। 240 माइनस 1.5 डजन मतलब 18, तो ये हो गए 222। 222 मैंगोज उसने 12 रुपीज पर मैंगो के हिसाब से बेचा है। सो 222 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो गया 2664। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 240 मैंगोज 7 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से उसने लिया था, मतलब उसने टोटल 1800 रुपीज दिए हैं। डिफरेंस देखिए, कॉस्ट प्राइस ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये 1800 है, सेलिंग प्राइस उसकी 2664 है। इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। सो ये होगा एसपी माइनस सीपी। तो 2664 माइनस 1800 ये हो जाएगा 864। तो प्रॉफिट हुआ है 864 रुपीज का, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 71. By which of the following number a number should be multiplied to calculate its 1.5%? 1.5% कैलकुलेट करने के लिए आपको 0.015 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5% मतलब 1.5 डिवाइड बाय 100 जो होता है 0.015। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 72. How many cubical blocks of 10 centimeter side should be used to make a cubical structure of 100 centimeter side? इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि एक क्यूब है जो 10 सेंटीमीटर साइड का है,
ऐसे कितने क्यूब लगेंगे, टोटल ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर हमें बनाना है। टोटल एक बड़ा सा क्यूब हमें क्रिएट करना है जिसकी साइड ये 100 सेंटीमीटर होगी। तो ये एक समझ लीजिए 10 इंटू 10 100 होता है, मतलब एक साइड को 10 ऐसे क्यूब लगेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। सो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब इज, हमें निकालना है 100 सेंटीमीटर वाला एक क्यूबॉइड बनाना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे बनेगा, 100 क्यूब मतलब 10 स्क्वायर का क्यूब है, दैट मीन्स 10⁶। अब जो हमें छोटा वाला क्यूब दिया है वो तो है 10 सेंटीमीटर वाला, मतलब उसका वॉल्यूम निकल जाएगा 10 क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए टोटल एरिया डिवाइडेड बाय, तो छोटा कितने का है वो हम करेंगे, मतलब टोटल 1000 ऐसे छोटे क्यूब्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 73. If an interest on rupees 100 for 1 month is rupees 1, then what is the rate of interest PCPA? परसेंट पर एनम। 100 रुपए के लिए एक महीने में 1 रुपया है। तो देखिए अगर एक महीने का 1 रुपया है तो 12 महीने के 12 रुपए हो गए। सो ऑप्शन 4 करेक्ट है, 12%। Question 74. If there is make a profit of cost price of 5 books after selling 25 books for rupees 6000, then what is the cost price of each book? इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमने 25 बुक्स 6000 रुपए में बेची तो जो प्रॉफिट है तो से 5 बुक्स का जितना कॉस्ट प्राइस है उतना हमको प्रॉफिट मिल गया है। तो कॉस्ट प्राइस, हर एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? प्रॉफिट दिया है 5 बुक्स का सीपी, हमने टोटल 25 बुक्स बेची है, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इतनी बुक्स बेची है। टोटल हमें सेलिंग प्राइस कितनी मिलती है, 6000 रुपीज, ये टोटल अमाउंट हमें मिल गई। तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं एसपी माइनस सीपी, तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो यहाँ हमें मिलेगा 6000 इज इक्वल टू 5 सीपी प्लस 25 सीपी, तो ये हो गया 30 सीपी इक्वल्स टू 6000, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई 200। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 75. Which will become next 3 numbers or the number pattern 3, 6, 10, 15 dash? इस पैटर्न में अगर आप ऑब्जर्व करें 3 + 3 किया तो 6 मिला, 6 + 4 किया तब 10 मिला, 10 में 5 ऐड किए तब 15, 15 में 6 ऐड करेंगे तो आपको 21 मिलेगा, 21 में 7 ऐड करना होगा तो 28 मिलेगा, और 28 में 8 ऐड करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 36। इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट।